I think I have explained you the legal principles enough. Now we can begin with the illustrative cases. Now, there is a case of Queen versus Lakshman Daglu. In this case, A was suffering from a fever, which used to cause him paroxysm, which in consequence caused him confusion and bewilderment. One day, in a fit of rage, he killed his children because he was annoyed by their constant crying. Alright. So after the act, after committing such heinous act, he just went back to sleep simply. The court said accused showed no previous symptoms of insanity. The court convicted him and said that at the time of doing the act, he was not under the influence of paroxysm and was fully conscious of what he was doing. So the conviction here was because he was fully conscious of what he was doing. So he couldn't gain the defense under Section 84 because, as we know, it is not the medical insanity, it is the legal insanity which is essential in order to take the defense of Section 84. Next, we come to Queen Empress versus Kader Nasser Shah. Kader Nasser Shah was tried before the Sessions Court on a charge of murder for causing death of a boy named Abdul. And Abdul was aged about 8 years. His plea was that he was mad at the time he strangled the boy. That's what the plea which Kader Nasser took. During those times, there was jury trial, so the two assessors were both convinced about acquitting him on the ground of unsoundness of mind. But the learned Sessions judge disagreed with them and convicted him for murder and sentenced him under Section 302 of the IPC and ordered the sentence to be of transportation for life. During those times, life imprisonment used to be there, and there was also this transportation for life that the convicts shall be sent to some far off island and he'll spend the remainder of his life there. So, continuing further, the accused had been suffering from mental derangement for some months previous to the date of occurrence, and since the destruction of his house and property by fire, that on one occasion he was seen eating potsherds, and he often complained of pain in his head. So, these were the few circumstances that took place, the events that took place before this commission of a murder by the accused person. Then, continuing further, preliminary inquiry also showed that when the commitment was taken up, he was found not to be in a fit state of mind to be able to make his defense. An inquiry was not able to be resumed until at least a year has been passed, when he was pronounced by the assessors to be in a fit state to withstand his trial. I will explain you the procedure of the CRPC, that what is this stage that suspends it, etc. We'll continue with the procedural aspects when we are done with your case laws. So he was not able to make his defense till the time he was being assessed by the assessors, and then after 1 year, assessor said that now he is in a fit state of mind to continue with the trial, and now you may begin with the trial. So the trial started somewhat more than a year after the incident. The murder, moreover, in this case was also committed without any apparent motive. The evidence showed that the accused person was also fond of the boy, and he had no quarrel with the boy's father. On the other hand, however, it was reminded to the court that the accused observed some secrecy in committing the murder. So the evidence established that while at the time of committing the murder, the accused, after its commission, observed secrecy because he tried to conceal the corpse and then he hid himself in a jungle. Now combine those two facts and you come to a conclusion that accused person was fully aware and fully conscious as to what he was doing, or at least, even assuming he was in an insane state, even then his cognitive faculties were conscious enough that he knew that whatever he was doing
it was contrary to law or it was wrong, and he fully knew the nature of his act. That is why he tried to conceal the corpse, and that is why he tried to hide himself. So here the court held that the accused is not entitled to acquittal but should be convicted. However, court also observed that it was a borderline case, falling within the very edges of unsoundness of mind, and the court saw that it can be of either way. So it also recommended to the governor to give some indulgent consideration in the case as to assist the accused, and even to commute the sentence if the governor so thinks it to be fit to do so in that particular case. But it is the court duty to apply law as it is, and it did so. It did its duty and said that the case does not fall within the purview of section 84. All right. The next case law in point is Emperor versus Gedka Gowla. In this case, accused killed his own children and wife. All right. And court emphasized that one must see whether the accused knew at the time of committing the murder that he was killing human beings. Although in this case there was absence of motive, absence of secrecy, and pre-arrangement, and absence of accomplices, etc., these circumstances were relevant but by themselves were not considered sufficient. Why? What happened in this case that proved that his case doesn't fall within the purview of section 84? First is, accused knew what he was doing. He threatened his brother-in-law that he will kill him like he killed the rest of his family. So after committing the murder, he also threatened his brother-in-law that he will kill him in the same manner how he killed his wife and children. Next, he went to neighbor's house to ask for poison so that he could take his own life because he killed his children and wife, and he was remorseful. And when the neighbor tried to disarm him, then the accused ran away. Then he went to his brother. He knew who his brother and sisters were, and there he declared his intention to kill, that he actually killed his own child and wife, and he wants them to save him. Next, he was clear-headed. He also confessed before the magistrate, and he was clear-headed at the time of confession. So when he made the confession, the court found that he was very clear-headed, and he was very particular as to what he did and under what stages of influence he carried out a particular attack, and why did he carry out a particular attack in a particular manner. Next is, he closed the doors before attacking the victim to make sure that they couldn't escape his attacks. Alright. So combined together, these facts showed that the accused was fully conscious as to what he was doing. Then again, he couldn't be given benefit of section 84. Next in line of cases is Lakshmi versus State. Accused was a drug addict. He killed his stepbrother with an axe and ran away from the scene along with the axe when alarm was raised. Of course, when you kill somebody, he will scream, and due to that alarm, he ran away after killing his stepbrother. Court held that his running away along with trying to conceal incriminating evidence as a fact that he knew whatever he was doing was wrong and was accordingly held liable. Now, next in line of cases is a case which the Supreme Court decided on 26 September 2002. The case name is Shrikant Anand Rao Bhosle versus State of Maharashtra. In this case, the prosecution case was that the appellant was a police constable. He and Surekha were married in the year of 1987. So I am telling you the circumstances that the Supreme Court narrated. On the day of the incident, they were living in police quarters along with their daughter. On the morning of 24th April 1994, there was a quarrel between husband and wife. So the wife's name was Surekha. Alright. And there was a quarrel on the morning of 24th April 1994. While Surekha was washing clothes in the bathroom, the appellant hit her with a grinding stone on her head. Grinding stone आपको पता होगा, भारी सा पत्थर नहीं होता जो मसाला पीसने के लिए यूज़ किया जाता है. So he hit the wife with that grinding stone, and it is very heavy stone. The appellant was immediately taken by the police to the quarter guard. Surekha was taken to the hospital. When she arrived at the hospital, she was declared dead. After usual investigation,
the appellate person, which is Shrikant Anand Rao, was charged for offence of murder of his wife. On the appreciation of evidence, the appellant was found guilty by the Sessions Court. Sessions Court ने guilty करार दिया. Evidence was again appreciated by the High Court. The judgment of the Sessions Court was affirmed by the High Court. But Supreme Court allowed the appeal and set aside the judgment of the High Court, and accused was given the benefit of Section 84 and was acquitted. After narrating the law under that applies under Section 84, that is, the burden of proving existence of circumstances bringing the case within the purview of Section 84 lies upon the accused. Under Section 105 of the Indian Evidence Act, the court shall presume absence of such circumstances. Then then the prosecution must prove beyond reasonable doubt that the accused has committed the offence with the requisite mens rea, and the burden of proving that always rests upon the prosecution from the beginning to the end of trial. Second is that there is a rebuttable presumption that the accused was not insane when he committed the crime. In the sense laid down by Section 84 IPC, the accused may rebut it by placing before court all the relevant evidence, oral, documentary, or circumstantial. But the burden of proof upon him is of no higher degree than that in civil trial. Alright. Third is when the accused was not able to establish conclusively that he was insane at the time when he committed the offence, the evidence placed before the court by the accused or by the prosecution may raise a reasonable doubt in the mind of the court as regards to one or more ingredients of the offence, including mens rea of the accused, and in that case the court would be entitled to acquit the accused on the grounds of that general burden of proof resting on the prosecution was not discharged. So, why do I mention that? This law is merely for the revision of yesterday's lecture. Yesterday I gave you the lecture regarding that point, that you need to keep these basic principles in mind. So I reiterated that just to revise it in your memory. Next is, now what were the circumstances that proved that accused was insane? First circumstances before the court. The first circumstance, appellant had a history of psychiatric illness right down from his father's genealogy to him. Second, cause of ailment was not known, but it was but the heredity genetics did play a part. Alright, so when a family history contains an element of mental illness, it is presumed that the child will also suffer from such type of genetic defects. So he was the police officer, the police constable was also the victim of that. And who was the accused in this case? He was Shrikant Anand Rao. Alright. Next, appellant was being treated for unsoundness of mind since 1992, and he was diagnosed as suffering from paranoid schizophrenia. Yesterday I described you what paranoid schizophrenia is. Fourth is, within a short span, soon after the incident, he had taken treatment for the ailment 25 times to the hospital. So, ever since, you remember that the conduct after the commission of crime is also relevant. It was found that he was taken to the hospital for treatment of this ailment, paranoid schizophrenia, 25 times. Fifth point that was proved was that the appellant was under the regular treatment for mental ailment. Sixth point that was that there was very weak motive of killing the wife, being that she was opposing the idea of appellant resigning the job of a police constable. ये prosecution ने बोला था. ध्यान रखिए, motive by itself इतना कोई relevant factor नहीं होता है, लेकिन importance assume कर लेता है किन्हीं situations पे. Seventh is killing in daylight. He killed his wife during daytime and he made no attempt to hide or run away. ना उसने भागने की कोशिश की, ना उसने छुपने की कोशिश की. तो ये दोनों सर्कमस्टेंसेस उसके फेवर में गए. तो जब सर्कमस्टेंसेस टोटलिटी में देखे गए, देन द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट ऑल इन ऑल these 7 points themselves show that accused was under the influence of unsound mind. He was under the influence of paranoid schizophrenia while he committed the act. Alright, so that is why he was acquitted. Acquitted का मतलब ये मत समझ लीजिएगा उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, उनको ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है. ऑलराइट, डू नॉट थिंक दैट अ पर्सन इज एक्विटेड. और अगर कोई आदमी सेन है और वो मान लीजिए
झूठ बोल के डिफेंस लेता है ना कोर्ट से कि मैं तो अनसाउंड माइंड का था, और उसके बाद कोर्ट जो है मान लीजिए गलती से प्ली भी मान ले आपकी कि नहीं हो सकता है कि वो अनसाउंड माइंड का हो, और आप मान लीजिए फोर्स्ड एविडेंस या कोई भी एविडेंस झूठ बोल के कोर्ट को कन्विंस करा भी लेते हैं, तो ध्यान रखिए अगर कोर्ट मेंटल असाइलम में डाल लेगा ना तो आप खुद ही एप्लीकेशन डालोगे कि मुझे जेल में डाल दो, मुझे मेंटल असाइलम में नहीं रहना। नेक्स्ट इन लाइन ऑफ केसेस इज पारसराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। So in this case, father and his relative sacrificed a 4-year-old boy to propitiate a deity. Propitiate का मतलब होता है to satisfy or to gain favor of someone. Supreme Court held that this act by itself does not prove insanity. Inhuman act of blood-curdling butchery of one's own son needs to be condemned and punished severely to deter such a deviant. And the Supreme Court found that this person is guilty. अगर इसने मान लीजिए he is having visions कि that person is a god and all that whatever, and he sacrifices his son knowing fully well that it is wrong, then he will not gain benefit of section 84, and accordingly he was held liable. There was this case of Nimrutti. It was reported in 1985 Criminal Law Journal. It was the case of Bombay High Court. I remember it correctly while I was reading Criminal Law Journal. So in this case there was a case reported, and I'll tell you what happened in that case. The accused person was laboring under a delusion and believed his 2-month-old infant child to be a devil and danger to himself, his family, and the whole society at large. So he killed the child with unusual ferocity and almost reduced the child to a pulp. So that was the level of ferocity that person exercised on a 2-month-old infant child, that the child was actually reduced to a pulp. So you can imagine what was the state of the corpse. And thereafter, without making any attempt to escape, told the police party that he has removed a devil from the world. It was held in that case that the accused did not know what he had done was wrong and was entitled to get protection of section 84. Alright, because from his point of view, he was ridding the world from a great evil. And he was under a complete delusion. It was found by his medical examination. He was suffering from schizophrenia and several other diseases, and he was under complete delusion. Not partial, complete delusion. And in that situation, the court said that all right, Mr. Nivrutti, considering all the facts and circumstances, we do find that you are insane and we cannot convict you for murder. Rather, we'll acquit you and send you to a mental asylum, because we don't want you looking for any more devils in this world again. Now I'll again tell you an illustrative case of Tukappa Tamanna versus State of Maharashtra. It was again a case of Bombay High Court, and in this case evidence of insanity was found by the narration of facts themselves. The accused and his sister were in a marketplace. Alright, तो जो accused हैं तकप्पा तमन्ना और उनकी बहन मार्केट प्लेस में थे. सिस्टर वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन अबाउट द कंडक्ट ऑफ द डिसीज पर्सन. तो किसी ने छेड़छाड़ की और जो सिस्टर थी वो गई पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेन की, एंड शी केम बैक विद अ कांस्टेबल. ऑलराइट, accused suddenly attacked the deceased person, and the accused was also a woodcutter by job, and he attacked him and beheaded him. He beheaded the deceased person. He tossed the head 3 times into the air, and he used such ferocity that he chopped the head in so many pieces that brain matter of the deceased person fell out. बाहर निकल आया था brain matter. He again blew the broken head into the air. He was then taken away by the police without any resistance. The burden, in this case the court found that the burden on the part of the accused stood sufficiently discharged. The fact that he was in employment as a woodcutter was not material
because many such employees are tolerated out of compassion. So, mere oral statements of witness cannot give rise to an inference that the appellant was of unsound mind at the time of commission of an offence. The plea of the accused does not come within the exception contemplated under section 84 of the IPC. Alright. So, Bombay High Court in essence was saying कि witnesses के oral evidence by themselves are not sufficient. But when we look at the facts in totality, we find many things. First is that it is observed that generally some of the woodcutters are of unsound mind, and generally, since it is not a very complex job, the employers on the grounds of sympathy employ such people. इट हैज़ बिन नोटिस्ड, कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोग दिमाग से सेन नहीं होते, लेकिन फिर वो लाइफ में कहाँ जाएंगे. तो कभी कभी एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि उनको एम्प्लॉय कर लेते हैं कि छोटा मोटा काम करता रहेगा, तो क्या कहते हैं, ये अपना जीवन यापन कर लेगा, ही विल हैव अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. साथ में कोर्ट ने पाया इस केस में कि ओरल एविडेंस तो दिए ही गए थे कि वो दिमाग से ठीक नहीं था. कोर्ट ने कहा वो बाय इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं होता कि आपने ओरल एविडेंस दे दिया कि ये पागल है और एक विटनेस खड़ा कर दिया कि ये आदमी पागल है तो उसको छोड़ देना चाहिए. कोर्ट ने कहा ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, आपको मेडिकल रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, आपको सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेगा, आपको कंडक्ट देखना पड़ेगा, आपको एक्ट्स देखनी पड़ेंगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि एट अ टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट अक्यूज्ड क्या ल्यूनेसी के इन्फ्लुएंस में था और उस लेवल पे था वेयर ही वाज इनकैपेसिटेटेड फ्रॉम नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट और नोइंग व्हाट ही वाज डूइंग वाज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ. ये देखना बहुत क्रूशियल था. तो कोर्ट ने बोला ये मेयरली ओरल एविडेंस पे नहीं साबित हो सकता, इसके लिए काफ़ी एविडेंस लेने पड़ेंगे. एक्ट्स, कंडक्ट, सर्कमस्टेंसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये टोटलिटी में देखा जाएगा. अच्छा, ये हाई कोर्ट का केस है तो इलस्ट्रेशन के लिए ही बता रहा हूँ. तो कोर्ट ने एक चीज़ देखी, कोर्ट ने बोला कि ये वुड कटर है बाय जॉब से, तो वो फॉरेस्ट में जब लकड़ी काटता है तो उसको आदत है फोर्सफुल स्ट्राइक करने की. दूसरा, उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जिस ब्रूटैलिटी से उसने मर्डर कमिट किया कि ब्रेन मैटर तक उसका डिसीज पार्टी का बाहर आ गया, तो उससे एक चीज़ दिख रही है कि ही इज़ नॉट इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड. इस केस में जो मेडिकल एविडेंस लिया गया था, डॉक्टर बावाहारे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वाज द मेडिकल ऑफिसर वो डिपोज्ड इन द कोर्ट, एंड ही डिपोज्ड बिफोर द कोर्ट दैट generally such person can commit insane inhuman acts of brutality. तो कोर्ट ने सारे सर्कमस्टेंसेस को जब टोटलिटी में देखा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, तब वो इस कंक्लूजन पे आया कि जो अक्यूज्ड ने जो एक्ट की है, इट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसैनिटी एंड ही शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 84. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के लॉ से अवेयर हैं. ये जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया है कि ब्रूटैलिटी ऑफ द एक्ट बाय इट सेल्फ इज़ नॉट सफिशिएंट, या ना भागना बाय इट सेल्फ इज़ नॉट सफिशिएंट, टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस पे चीज़ें आनी चाहिए. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि ये सारी चीज़ें हम लोग ने ध्यान में रखा है, इसका मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हुए, इसकी ब्रूटैलिटी और एक्ट ऑफ द नेचर देखते हुए, जिसने जिस तरीके से एक्ट कमिट की है, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हुए ऑफ इंसैनिटी, और ये भी देखते हुए कि इसने भागने की कोशिश नहीं की, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, ये सारा जब हम टोटलिटी में देखते हैं, नॉट मेयरली दी ओरल एविडेंस भी आया था इसमें कि दैट द अक्यूज्ड पर्सन इज़ इनसेन, तो एक ग्राउंड ये भी लिया गया था कि ओरल एविडेंस खुद में सफिशिएंट हो जाना चाहिए, बाकी नहीं सफिशिएंट होना है, बाकी आप इग्नोर भी कर सकते हैं. तो कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बोला कि ओरल एविडेंस बाय इटसेल्फ विल बी नॉट बी सफिशिएंट इन दिस केस. यहाँ पे और भी टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस देखने होंगे. तो जब प्रीवियस और उसके बाद वाला कंडक्ट, साथ में मेडिकल हिस्ट्री और बाकी हिस्ट्री जब कोर्ट ने देखी, और फिर ब्रूटैलिटी और इनह्यूमैनिटी ऑफ द एक्ट्स देखी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट इसी कंक्लूजन पे आया कि दिस पर्सन इज़ इनसेन, और उसकी जो एक्ट है इट इज़ फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 84 ऑफ द IPC. एंड यहाँ पे वो उसको मर्डर के लिए कन्विक्शन नहीं दे सकते. तो इस केस में
ल्यूनेसी का बेनिफिट मिल गया था। ऑलराइट, लेकिन ध्यान रखिए इस केस के फैक्टर सर्कमस्टेंसेस पेक्यूलियर थे। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा ये इनफ्लेक्सिबल रूल ऑफ लॉ है कि कोई भी फैक्ट आ गया ऐसे ही होगा। फैक्ट्स पहले ध्यान से पढ़िए, फिर जो प्रिंसिपल्स हैं, एब्सेंस ऑफ मोटिव, कंडक्ट, सारी चीज़ें लगाइए उस पर। मेन क्रूशियल पॉइंट आपको क्या लगाना है, मैकनॉटन रूल सेक्शन 84। सेक्शन 84 क्या कहता है, इनकैपेसिटी टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, इनकैपेसिटी टू नो दैट वॉट एवर ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। दिस इज एसेंशियल। एक बार ये प्रिंसिपल्स आपने पहले लिख लिए, उस प्रिंसिपल्स पे आप फैक्ट्स को जज करेंगे। आप देखेंगे कि आप फैक्ट्स उन प्रिंसिपल्स के पॉइंट्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर आ रहे हैं तो बेनिफिट मिलेगा। तो फॉर दैट पर्पस यू नीड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट टू कम टू दैट कंक्लूजन। तो फैक्ट्स और जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनको अप्रिशिएट करने की आर्ट आनी चाहिए। ऑलराइट, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इंक्वायर करेंगे, जितना ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे सोचेंगे, उतनी ज़्यादा एबिलिटी आपके अंदर आती जाएगी। सो आई थिंक I have given enough illustrative cases on this point. Now I will tell you about the procedural aspects. अब क्योंकि मैंने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का प्रोसीजर देखा है, तो मैं ये जानता हूँ कि कोर्ट क्या क्या चीज़ें देखता है। प्लानिंग देखता है पहले तो, कि डेलिबरेट इंटेंशन था, टाइम स्पेंट ऑन प्लानिंग कितना था, प्रेजेंस ऑफ एन अकॉम्प्लिस था या नहीं, या डिड ही प्रोक्योर अ रिक्वायर्ड वेपन और नॉट, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस, डिड ही अरेंज अ व्हीकल टू एस्केप, या डिड ही ट्राई टू रन अवे और हाइड हिमसेल्फ। ये सारी चीज़ें कोर्ट देखता है। सेकेंड इज ही द कोर्ट ऑल्सो सीज वेदर द एक्यूज्ड मेड एनी अटेम्प्ट टू अवॉइड डिटेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि कोर्ट ये सारी चीज़ें देखता है कि क्या उसने ग्लव्स यूज़ किए हैं, मास्क यूज़ किए, डिड ही ट्राई टू कंसील हिमसेल्फ, डिड ही वेट फॉर एन ऑपर्टून मोमेंट टू कमिट द ऑफेंस, डिड ही टेक द विक्टिम टू अ सेक्लूडेड प्लेस, एसेट्रा। ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट ये देखता है कोर्ट कि क्या उसने एविडेंस को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की या नहीं। डिड द एक्यूज्ड पर्सन ट्राई टू वाइप आउट फिंगरप्रिंट्स, या डिड ही ट्राई टू रिमूव द ब्लड स्टेन्स, did he try to hide the weapons used, did he try to destroy the documents, did he try to bury or conceal the victim, did he try to plant false evidences, did he try to threaten witnesses। ये सारी चीज़ें कोर्ट देखता है। फिर एक और चीज़ें आपको प्रैक्टिस और प्रोसीजर से बताता हूँ। did he try to escape from the crime scene, did he try to avoid the arrest, did he try to resist the arrest, did he lie to police, did he lie to the court, did he notify the police, and was there an expression of guilt present in his face, did he took contradictory statements before the magistrate, did he confess before the magistrate। ये सारी जो चीज़ें ना ये टोटलिटी में देखी जाती हैं। नेक्स्ट इन पॉइंट ये भी देखा जाता है क्या उसके साथ साथी प्रेजेंट थे या मल्टीपल अकम्प्लिसेस थे उसके साथ, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। मोटिव भी डिटरमाइन किया जाता है, और ये देखा जाता है इफ़ कि क्या वो कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने में केपेबल है। इफ़ अ पर्सन has performed a complex task to commit a murder which requires great cognitive ability immediately before or after commission of a crime, then it can be presumed that that person is not insane। क्योंकि इतना अगर cognitive capacity है उसके दिमाग में, तो कोर्ट ये नहीं मान पाएगा कि he was insane of that level कि उसको ये नहीं पता था कि वो क्या एक्ट कर रहा है। मतलब ये रेलेवेंट है, ये मत समझ लीजिएगा कि by itself is sufficient। ये रेलेवेंस ये टोटलिटी में देखा जाएगा। नेक्स्ट इज रोल ऑफ साइकेट्रिस्ट। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जनरली जब कोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेजता है रिपोर्ट देने के लिए, तो साइकोलॉजिस्ट उसमें बैठे होते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट के पास एफआईआर जाती है, एफआईआर नंबर जाता है, कोर्ट का केस नंबर जाता है, कोर्ट उस पर कहता है कि आप अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करें। तो ऐसी रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा, तो ऐसी रिपोर्ट्स में होता क्या है, जनरली पेशेंट का नाम, फादर्स मदर्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, लीगल स्टेटस ऑफ द प्रिजनर, ड्यूरेशन ऑफ द स्टे इन प्रिजन्स, चार्जेस उसके खिलाफ क्या क्या हैं, प्रिजन के अंदर उसका बिहेवियर कैसा था, चीफ कंप्लेंट्स एज़ पर रेफरिंग अथॉरिटी, चीफ कंप्लेंट्स एज़ पर पेशेंट पे, ये सब कंप्लेंट्स क्या दी जा रही हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि सर्कमस्टेंसेस जिनके अंडर क्राइम कमिट हुआ वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस क्या है, पास हिस्ट्री ऑफ मेडिकल और साइकियाट्रिक इलनेस भी देखी जाती है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री देखी जाती है, फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, पेडिग्री चार्टिंग के साथ देखी जाती है कि क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है इन लोग की साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की। फिर प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी देखी जाती है, डायग्नोसिस किया जाता है,
और फिर जो साइकेट्रिस्ट है वो पुलिस स्टेशन से उसको एक एफआईआर की कॉपी पकड़ाई जाती है, कोई और लेटर्स और ट्रीटमेंट, और फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनसे भी एक इंटरव्यू लेता है इन ऑर्डर टू गेट अ पर्टिकुलर पॉइंट कि जो अक्यूज पर्सन है उसकी मेंटल स्थिति को पूरी टोटलिटी में जानने के लिए इस तरीके का इंटरव्यू साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिस्ट क्या इंटरव्यू करवाएगा, कैसे करेगा, इसका कोई प्रोसीजर इंडिया के लॉ में नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे होता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है, व्हेन द मेडिकल बोर्ड हैज सर्टिफाइड, तो वो जो हैं साइकेट्रिस्ट एक सर्टिफिकेशन उनको देना होता है और असेसमेंट करना होता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है क्या वो इनसेन है और इज़ ही हैविंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ दैट सफिशिएंट लेवल दैट इज़ फिट टू स्टैंड अ ट्रायल। ऑलराइट, तो ये सर्टिफिकेट उसको देना होता है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए एक तो ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट से कंप्लाई करना होता है जो मैंने अभी आपको बताया। अब जो साइकियाट्रिस्ट है ना वो इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू क्या करता है, वो अक्यूज से, मैं आपको कुछ इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस दे देता हूँ जो पर्सनली क्या कहते हैं यू कैन सी, अगर आप कभी भी किसी मेडिकल बोर्ड अभी कोर्ट में रेफ़र कर लें कि मान लीजिए किसी अनसाउंड माइंड पर्सन का केस आया, तो एज अ डिफेंस काउंसिल आप जा सकते हैं ये जानने के लिए कि साइकोलॉजिस्ट क्या सवाल पूछेगा। तो जनरली साइकोलॉजिस्ट मेंटल पेशेंट की स्थिति जानने के लिए कुछ सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है, उससे मान लीजिए ऐसा सवाल पूछेगा कि बताओ कि तुम्हें हॉबीज़ क्या पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है, खाना कैसा पसंद है। पहले जनरल सवाल पूछेगा इन ऑर्डर टू नो इट्स स्टेट ऑफ माइंड, फिर धीरे धीरे वो सवालों को कॉम्प्लेक्स करता जाता है, स्पेसिफिक करता जाता है। साइकोलॉजिस्ट जनरल से स्पेसिफिक्स पे आता है कि उसकी इमोशनल स्टेट जानने में पहले उसका दिन पूछेगा, उससे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद स्पेसिफिक्स बातें करेगा उससे। पहले फिर हो सकता है वो ये सवाल पूछे कि जब तुमने ऑफेंस किया था तो तुम्हें कैसा लगा था, फिर उस पर अक्यूज्ड को क्या जवाब आता है उसको रिकॉर्ड करेगा। फिर उससे पूछता है कि जिस एनवायरनमेंट में तुमने ऑफेंस किया क्या वहाँ पे लोग पसंद थे, क्या वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे और क्या उन्होंने देखा कि ऑफेंस किस तरीके से हुआ। और फिर देखता है कि उसका बिहेवियरल और इमोशनल रिस्पॉन्स सवालों पे क्या है। उसके बाद वो पूछता है कि तुमने विक्टिम को क्यों मारा और क्या रीज़न था कि तुमने विक्टिम को मारा। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर केस में पूछा जाए। कभी कभी टोटल साइकोटिक केसेस में बड़ा इनडायरेक्ट वे में भी पूछा जा सकता है, पर मैं आपको एक सिंपल इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। हो सकता है फिर साइकोलॉजिस्ट जनरल क्वेश्चन के बाद स्पेसिफिक क्वेश्चन और पूछना शुरू कर दे कि अगर मान लो तुम विक्टिम होते तो तुम क्या करते, और अगर तुम्हारे खिलाफ ऐसी एक्ट कमिट होती तो तुम लॉ से क्या मदद मांगते। अच्छा, तुम एक बार बताओ कि पुलिस ने तुम्हारे साथ कैसा ट्रीटमेंट किया, अगर यही क्राइम तुम्हारे किसी जानने वाले के साथ होता तब तुम कैसे रिएक्ट करते। तो उसका बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्स जानने के लिए साइकियाट्रिस्ट कई तरीके के क्वेश्चन उससे पूछ सकता है, और पर्पस उसका बस ये है उसका मेंटल स्टेटस और कॉग्निटिव फंक्शनल असिस्टेंट डिटरमाइन करने का। ठीक है, फिर मान लीजिए उसको पेशेंट या हॉस्पिटल वार्ड में रखा गया है, ऑलराइट, तो अब वहाँ पे भी उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर वहाँ पे भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि एज अ मेंटल पेशेंट उसका जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनल हाइजीन कैसी है। पर्सनल हाइजीन जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ अ वेरी गुड फैक्टर दैट ही हैज़ कॉग्निटिव फैकल्टीज़ इंटैक्ट। ये एक रेलेवेंट फैक्टर है, सफिशिएंट मत मानिएगा, रेलेवेंट फैक्टर है। कभी कभी कुछ साइकोटिक लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं बट दे आर मेंटली इनसेन। तो पर्सनल हाइजीन इज़ वन ऑफ द रेलेवेंट फैक्टर्स। बिहेवियर एंड सोशल फंक्शनिंग, वो कैसे बाकियों से बात करता है, कैसे बाकियों से बिहेव करता है, उसकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, ब्रेन मैपिंग और जितने भी आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं कि कहीं ब्रेन डैमेज तो नहीं है या टेम्पोरल लोब तो डैमेज नहीं है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने के बाद एक उसकी भी रिपोर्ट बनाई जाती है। ये दिखाया जाता है कि जो मेंटल वार्ड में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, वो डेली अपनी लाइफ हॉस्पिटल में कैसे बिताता है, फिर उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ मॉनिटर की जाती हैं। फिर अगर वो कोई एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है तो वो पूरा नोट किया जाता है। अब उसमें हेलुसिनेटरी बिहेवियर आ सकता है। मान लीजिए वो गार्बेज कलेक्ट कर रहा है या वो बहुत सारा एक्सक्रीटा कलेक्ट कर रहा है, मतलब डिस्गस्टिंग हरकतें कर रहा है, या वो एकदम पैनिक की स्टेट में है या अपने आप को नोच रहा है,
और अपने अपने आप को डैमेज करा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो मैंने आपको एक इलस्ट्रेटिव बातें बता रहा हूँ, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। नेक्स्ट इज़ वो ये भी देखा जाएगा कि उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो खुद को इंजरी पहुंचाता है, क्या वो दूसरों को इंजरी पहुंचाता है, वो किसी तरीके का सब्सटेंस यूज़ करता है तो उस पर कैसे रिएक्ट करता है, खाने को कैसे रिएक्ट करता है, खाना क्या वो ढंग से खाता है या वो खाने को भी शक की निगाहों से देखता है। यू नो साइकोटिक स्किज़ोफ्रेनिया में या पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में जो आदमी होता है उसको हमेशा ये होता है कि उसको परसिक्यूट किया जा रहा है, तो हो सकता है खाने में समझे कि जहर है, तो उस पर क्या बिहेवियर होता है उसका, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिर ये टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस जो मैंने अभी आपको बताई, ये फिर डॉक्यूमेंट की जाती हैं। उसके बेसिस पे एक डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस करने के बाद जो साइकेट्रिस्ट और मेडिकल बोर्ड होता है वो एक डेलिब्रेशन करते हैं। इस पर डेलिब्रेशन करने के बाद इस पे कोर्ट को एक रिपोर्ट भेजते हैं कि क्या उसका मेंटल स्टेटस है। ऑलराइट, तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता दिया। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सीआरपीसी। सीआरपीसी इस बारे में क्या बोलता है। सो इन सीआरपीसी सेक्शन 328 to 339 governs that what the magistrate or the court of session has to do when it finds that the accused person is of unsound mind. All right. So first we'll deal with section 328, which says procedure in the case of the accused being lunatic. अब देखिए 328 और 329 जब आप ऐसे पढ़ेंगे आपको बड़ा सिमिलर लगेगा और आपको लगेगा इसमें अंतर क्या है। मैं भी आपको अंतर बता दूंगा। एक वर्ड का अंतर है, इससे सिचुएशन चेंज हो जाती है। When a magistrate holding an inquiry has a reason to believe that the accused person against whom the inquiry is being held is of unsound mind and consequently he is not capable of making his defense, then the magistrate shall inquire into the fact of unsoundness of mind। ये जानेगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या नहीं, और उसके बाद एक फाइंडिंग रिकॉर्ड करके ये केस को सिविल सर्जन के पास भेज देगा। ठीक है, सिविल सर्जन अदर डिस्ट्रिक्ट या किसी भी और मेडिकल ऑफिसर को जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया हो। और उसके बाद जो सिविल सर्जन है क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा इस अक्यूज पर्सन को, देखेगा कि क्या उसका अनसाउंड माइंड है या नहीं। और जब वो एक बार ये एग्जामिनेशन कर लेगा और डिटरमाइन करेगा, और उसके लिए वो साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन सारे लोगों की मदद लेके एक कंक्लूजन पे आएगा। उसके बाद मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मेंटल रिटार्डेशन है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, नेक्स्ट स्टेज ये होगी कि मान लीजिए अगर अक्यूज पर्सन को ग्रीवेंस है जो रिपोर्ट फॉरवर्ड की है साइकियाट्रिक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने, तो मैजिस्ट्रेट के सामने जो भी रिपोर्ट फॉरवर्ड की है इस साइकियाट्रिक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने, तो मैजिस्ट्रेट तो ये जो अक्यूज पर्सन है वो एक अपील कर सकता है मेडिकल बोर्ड के सामने। अब मेडिकल बोर्ड में कौन बैठेगा, हेड ऑफ द साइकियाट्रिस्ट यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, और एक फैकल्टी मेंबर बैठेगा साइकियाट्री का जो पास के ही एक मेडिकल कॉलेज से होगा। उसके बाद वो डिटरमाइन करेंगे कि जो इनिशियल रिपोर्ट भेजी गई थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट द्वारा मैजिस्ट्रेट को टेलिंग अबाउट कि वो अनसाउंड माइंड का है अक्यूज्ड या नहीं, या वो मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र कर रहा है या नहीं, तो उसको डिटरमाइन करेगा कि क्या इसी रिपोर्ट को अपहेल्ड करें या इस रिपोर्ट से हम डिसएग्री करते हैं। ऑलराइट, तो अपील का कंक्लूजन आइदर आ सकता है। और जब तक ये एग्जामिनेशन चल रहा है ना, पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, तब तक जो इंक्वायरी चल रही है ना क्रिमिनल केस की, वो मैजिस्ट्रेट पोस्टपोन कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, जब मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म होता है कि ये जो पर्सन है अक्यूज पर्सन ये अनसाउंड माइंड का है, तो मैजिस्ट्रेट एक चीज़ और डिटरमाइन करेगा कि क्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इस लेवल की है कि अक्यूज्ड अपना डिफेंस नहीं कर सकता, या ही इज़ इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू डिफेंस, क्योंकि अक्यूज्ड को डिफेंस भी तो अपना करना पड़ता है। प्रोसिक्यूशन क्या कहते हैं अपना वर्जन डालेगा, तो डिफेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। और अगर मैजिस्ट्रेट ये पाता है कि अक्यूज पर्सन इज़ इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू डिफेंस, तो उसको ये फैक्ट रिकॉर्ड करना होगा। अब इसको जानने के लिए वो एक फाइंडिंग करेगा
ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो रिपोर्ट को कंसिडर करेगा, फिर प्रोसिक्यूशन को सुनेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा और अक्यूज्ड के एडवोकेट से कुछ बातचीत करेगा, पर अक्यूज से कोई बातचीत नहीं करेगा। मैजिस्ट्रेट इस प्रोसेस के लिए अक्यूज से कोई सवाल जवाब नहीं करता है, उसके एडवोकेट से बात करता है। उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि पूरे केस में प्राइमा फेसाई केस ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, प्राइमा फेसाई केस का मतलब ये होता है कि केस पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुआ है और प्रोसिक्यूशन का जो भी वर्जन है उसके कई व्यूज़ पॉसिबल हैं, पर उनमें से एक भी व्यू ऐसा नहीं है जो अक्यूज को गिल्टी करार दे दे, या एविडेंस को अगर मैजिस्ट्रेट जो है टोटलिटी में भी कंसिडर करे। मिनी ट्रायल नहीं होता यहाँ पर। Prima facie case is not a case proved to a hilt. It merely believes if the view processed by the prosecution can be followed by the magistrate, not that this is the only view that is possible on the evidence adduced by the prosecution. All right. तो मैजिस्ट्रेट जो है अगर उसको लगता है कि प्राइमा फेसाई केस नहीं मेड आउट हुआ तो वो डिस्चार्ज कर देगा, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि प्राइमा फेसाई केस मेड आउट हो चुका है अक्यूज्ड के खिलाफ तो वो क्या करेगा, तब वो एक फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का पर्सन हो गया है, फिर सारी प्रोसीडिंग पोस्टपोन कर देगा और उसके बाद ये जो अक्यूज्ड है उसको साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देगा और बोल देगा कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसको आप ट्रीट करिए। ठीक है, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो ये पर्सन है जिसको रेफ़र किया गया है साइकोलॉजिस्ट को, वो मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट फिर एक और चीज़ डिटरमाइन करेगा कि क्या वो मेंटल रिटार्डेशन इज़ इनकेपेबल ऑफ इज़ मेकिंग द अक्यूज्ड पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू डिफेंस। और अगर कोर्ट को क्या कहते हैं मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ही इज़ इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू डिफेंस मेंटल रिटार्डेशन के कारण, तो वो इंक्वायरी को क्लोज कर देगा, इंक्वायरी को क्लोज कर देगा। ये मेंटल रिटार्डेशन के केस में होता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के केस में नहीं। मेंटल रिटार्डेशन और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेंटल रिटार्डेशन में जो एवरेज इंटेलिजेंस लेवल है वो गिरता चला जाता है, जो डे टू डे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। तो ऐसे केस में अगर ये देख लिया गया कि उसकी मेंटल स्थिति दिन ब दिन गिरती ही जा रही है, तो ऐसे में मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बंद कर देगा, पोस्टपोन नहीं करेगा, जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के केस में होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली चीज़ क्या हुई, सिविल सर्जन को रेफ़र हुआ इनिशियल स्टेज पे, मैजिस्ट्रेट ने फाइंडिंग की। उसके बाद सिविल सर्जन एक रिपोर्ट देगा कि क्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या मेंटल रिटार्डेशन है। अक्यूज्ड अग्री हुए तो मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करे। उसके बाद मैजिस्ट्रेट को ये जानने के लिए कि क्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इस लेवल का है कि वो डिफेंस में एंटर नहीं हो पा रहा, प्रोसिक्यूशन को एग्जामिन करेगा, एविडेंस देखेगा, डिफेंस के एडवोकेट से बात करेगा, पर अक्यूज से बात नहीं करेगा। और अगर उसको लगता है कि प्राइमा फेसाई केस नहीं इस्टेब्लिश हुआ तो क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा। और अगर प्राइमा फेसाई केस इस्टेब्लिश हो गया है तो पोस्टपोन कर देगा प्रोसीडिंग और अक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर देगा साइकियाट्रिस्ट और या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को। फिर एक नेक्स्ट स्टेज आती है। हाँ, ध्यान रखिएगा, मेंटल रिटार्डेशन के केस में इंक्वायरी को क्लोज किया जाता है, पोस्टपोन नहीं। प्रोसीजर इन द केस ऑफ अनसाउंड माइंड ट्राइड बिफोर कोर्ट। अब यहाँ पे है इफ़ एट द ट्रायल ऑफ एनी पर्सन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो अब आप अगर सेक्शन पढ़ेंगे ना पूरा का पूरा, तो वही स्टेट बता रहा है जो 328 में होता है, पर वर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस है। इनिशियली अगर आप 1A कंपेयर करें और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 को कंपेयर करें तो आपको काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं 328 और 329 में। पर 328 किस स्टेज पे लगता है, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ अभी आपको। 328 लगता है जब इंक्वायरी की स्टेज है मैजिस्ट्रेट के सामने। इंक्वायरी ट्रायल से पहले होती है, जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तब ट्रायल होता है। तो 329 की जो स्टेज है वो चार्ज फ्रेमिंग के बाद की स्टेट है। ऑलराइट, तो ये 329 का प्रोसीजर तब अप्लाई करेगा जब चार्ज फ्रेम हो चुका है। और जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, देखेगा कि क्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इनकैपेसिटी है, फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा, फिर मेडिकल या बाकी एविडेंस देखेगा और फिर एक फाइंडिंग उस पर रिकॉर्ड करने के बाद फिर वही प्रोसीजर से कंप्लाई करेगा, साइकोलॉजिस्ट को केयर और ट्रीटमेंट के लिए दे देगा। अक्यूज्ड अगर अग्रीव्ड है तो मेडिकल बोर्ड के सामने अपील प्रेफर करे। उसके बाद मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है
कि वो अनसाउंड, कि जो अक्यूज पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है और वो अपने डिफेंस में एंटर नहीं कर सकता, तो जो कोर्ट है वो एक फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा उस बेसिस पे। और सिमिलरली अगर प्राइमा फेसाई केस मेड आउट हो चुका है अक्यूज्ड का, तो फिर वो पोस्टपोन कर देगा ट्रायल को, ठीक है। देन ही विल पोस्टपोन द ट्रायल। एंड ये एक ऑड सिचुएशन सिर्फ यहीं पे दी गई है अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 329। देखिए जनरली हमेशा डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं है चार्ज फ्रेमिंग के बाद, ऑलराइट। इन अ क्रिमिनल ट्रायल डिस्चार्ज इज नॉट पॉसिबल आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बट यहाँ पे ही एक एक्सेप्शनल सिचुएशन दी गई है जहाँ पे अगर पा लिया गया कि अक्यूज्ड अनसाउंड माइंड का है और इस लेवल की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है कि वो अपने डिफेंस में ही नहीं आ सकता, तो उसको डिस्चार्ज कर देगा। उसका रीज़न ये है कि ये एक्सेप्शनल सिचुएशन क्यों कार्व की गई, इसलिए कार्व की गई है क्योंकि ये रेगुलर कोर्स से एकदम हट के है। अगर कोर्ट ने ट्रायल के दौरान पा लिया कि वो अनसाउंड माइंड का है, इसका मतलब है कि इंक्वायरी की स्टेज पे भी हो सकता है कि अनसाउंड माइंड का हो। यही बात बाद में पता चली है, तो इसका मतलब है वो डिस्चार्ज की प्रोसीडिंग में भी ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो कोर्ट उस एरर को कोर्ट करने के लिए लेजिस्लेचर ने एक प्रोविज़न डाल रखा है कि अगर यहाँ पे भी प्राइमा फेसाई केस प्रूव नहीं होता है तो डिस्चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। और बिना ट्रायल पोस्टपोन, अगर कोर्ट को लगता है कि सारा एविडेंस हम कंसिडर कर लें, ट्रायल चल रहा है और ये प्रोसीडिंग आ गई क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स कि वो अनसाउंड माइंड का है, तो फिर वो प्रोसिक्यूशन को एग्जामिन करेगा, उसका एविडेंस देखेगा, डिफेंस से थोड़ी बातचीत करेगा एडवोकेट से, और उसके बाद क्या कहते हैं एक कंक्लूजन पे आएगा। और फिर उसको लगता है अगर प्राइमा फेसाई केस भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है ना, मतलब 5 व्यू मान लीजिए पॉसिबल हैं, 5 में से एक व्यू ऐसा है जो अक्यूज्ड को गिल्टी करार देता है, तो अगर ऐसा है तो वो प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर 5 व्यू पॉसिबल होने के बाद भी एक भी व्यू ऐसा नहीं है जो अक्यूज्ड को गिल्टी करार दे दे, या अगर प्रोसिक्यूशन की सारी बात मान ले कोर्ट तो ये मान सके कि अक्यूज्ड पर्सन गिल्टी है, तो ऐसे केस में जो वो है क्या कहते हैं कोर्ट क्या करेगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा इवन इफ प्राइमा फेसाई केस इज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड, ऑलराइट। और उसके लिए वो क्या क्या डिटरमाइन करेगा, उसके लिए वो 3 चीज़ें डिटरमाइन करेगा: मेडिकल रिपोर्ट्स, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ द डिफेंस काउंसिल ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, और उसके बाद वो जाके एक कंक्लूजन पे आएगा कि इस केस में क्या करना है। ध्यान रखिएगा सिर्फ 329 में एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग के बाद भी डिस्चार्ज का प्रोविज़न दिया गया है। ये आप कभी भी जनरल पोजीशन मत मानिएगा। जनरल पोजीशन ये है कि चार्ज फ्रेमिंग के बाद ही ट्रायल शुरू होता है, और एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो डिस्चार्ज आप नहीं किए जा सकते, क्योंकि डिस्चार्ज की जो स्टेट है वो चार्ज फ्रेमिंग के बाद की है, ऑलराइट। सॉरी, डिस्चार्ज की जो स्टेट है वो चार्ज फ्रेमिंग से पहले की स्टेज है, चार्ज फ्रेमिंग के बाद नहीं होती। डिस्चार्ज की स्टेट इज़ नेवर आफ्टर द चार्ज फ्रेमिंग, इट इज़ बिफोर द चार्ज फ्रेमिंग। जैसे अगर आप कभी सेशंस ट्रायल या वारंट ट्रायल अगर आप पढ़ेंगे, व्हेन आई विल टीच यू दैट, तो आप इस कंक्लूजन पे आएंगे कि हमेशा डिस्चार्ज की स्टेज जो होती है वो चार्ज फ्रेमिंग के बाद ही होती है, चार्ज फ्रेमिंग के पहले ही होती है। चार्जेस हमेशा डिस्चार्ज की स्टेज के बाद बनते हैं, उससे पहले नहीं बनते। सो बी वेरी पर्टिकुलर ऑफ दैट। अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में या कहीं पे भी एक सवाल पूछा जाए कि ट्रायल कहाँ से शुरू होता है, तो आप यूनानिमस आंसर ये देंगे कि जनरली barring of one exceptional situation under CRPC, the trial starts after framing of charges, and if the charges have been framed then the accused cannot be discharged. discharge नहीं हो सकता एक बार चार्ज फ्रेम हो गया, उसका acquittal होता है, तब ही इज़ acquitted, not discharged. discharge अलग होता है, एकदम अलग होता है। तो discharge पे elaboration के लिए you have to take the CRPC classes, but be very particular of that. I'll reiterate the position of law once again, and just note it down anywhere you want. First is, the stage of discharge is before the stage of charge framing. Once a charge has been framed, it means the prima facie case has been satisfied. क्योंकि डिस्चार्ज करने के लिए जो ज़रूरी है कि प्राइमा फेसाई केस होना ही नहीं चाहिए। अगर डिस्चार्ज की प्रोसीडिंग चल रही है
और प्राइमा फेसाई केस कोर्ट को नहीं दिखता तो अक्यूज डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइमा फेसाई केस कोर्ट ने पा लिया तो अक्यूज के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाता है। और जब एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो अब ट्रायल शुरू होगा, उस पर एविडेंस दिया जाएगा और उस एविडेंस के बेसिस पे ये देखा जाएगा कि अक्यूज्ड कन्विक्ट होता है या क्विट होता है। ऑलराइट, ये सिंपल क्या कहते हैं एक नरेशन है स्टेजेस का, ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। और इस पर इलेबोरेटेड प्रोसीजर तो आपको सीआरपीसी में मिलेगा, लेकिन आईपीसी के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बस ये ध्यान में रखें, ये ऐसा होता है। सिर्फ सीआरपीसी की स्टेज पे अंडर सेक्शन 329 की सब सेक्शन 2 में ऐसा एक्सेप्शनल प्रोसीजर दिया गया है। क्यों दिया गया है? अच्छा, वो सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हो सकता है कि वो डिस्चार्ज की भी स्टेट में भी अनसाउंड माइंड का था, तो हो सकता है कोर्ट से एरर हो गया हो कि वो अभी तक प्रोसीड करता हुआ चला आ रहा है, उसको यही नहीं पता कि अक्यूज पर्सन अनसाउंड माइंड का है। सो दिस इज़ वाई इन ऑर्डर टू क्योर दैट डिफेक्ट ये प्रोविजन डाला गया है। सो उसके बाद ट्रायल अगर कोर्ट को लगता है, कंटिन्यूइंग विद सेक्शन 329, कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है, तो प्राइमा फेसाई केस नहीं एस्टैब्लिश होता तो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश हो चुका है तो क्या होगा? तो कोर्ट क्या करेगा, वो पोस्टपोन कर देगा ट्रायल को उतने टाइम के लिए जब तक साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट या जो भी है वो ये सर्टिफाई ना कर दे कि अक्यूज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड टू इंटर हिज डिफेंस, ठीक है। अब थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ट्रायल होल्ड नहीं करेगा और बोलेगा कि अक्यूज्ड पर्सन को आप सेक्शन 330 के अकॉर्डिंग डील करिए। तो अब 330 को मैंने सीआरपीसी के बैच को यही बताया था कि ये वन ऑफ दोज प्रोविजंस हैं जहाँ पे एब्सोल्यूट बेल मिलती है। सो व्हेन अ पर्सन इज फाउंड अंडर सेक्शन 328 और 329 टू बी इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू डिफेंस बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन, तो चाहे केस ऐसा हो जिसमें बेल दी जा सकती है या नहीं, उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज़ वन ऑफ द सिचुएशन जिसमें आपको एब्सोल्यूट बेल मिल सकती है। पर अगर ऐसे केस में इन पेशेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसको साइकियाट्रिक वार्ड में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई केस ऐसा है कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फ्रेंड्स और रिलेटिव अगर उसकी अंडरटेकिंग लेते हैं कि उसको रेगुलर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट दिखाएंगे और अपनी केयर में रखेंगे और वो किसी और को इंजर नहीं करेगा और ख़ुद को इंजर नहीं करेगा अनसाउंड माइंड का पर्सन जो अक्यूज्ड है, तो ऐसे केस में उनको भी दिया जा सकता है कि हाँ ठीक है आपकी कस्टडी में है, इसको साइकियाट्रिक वार्ड में परमानेंटली नहीं डालेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 330 का कि अगर मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगता है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उसकी अंडरटेकिंग ले ले और इसको बाहर छोड़ना बहुत खतरनाक है तो उसको बेल पे रिलीज़ नहीं करेगा, उसको सीधे साइकियाट्रिक वार्ड में डाल देगा साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एक रिपोर्ट दे देगा कि ऐसा ऐसा किया है। लेकिन जब भी वो डिटेंशन ऑर्डर करेगा अक्यूज पर्सन का ल्यूनेटिक आइसिलम में तो उसको मेंटल हेल्थ एक्ट के प्रोविजन से कंप्लाई करना होगा अगर उसे ल्यूनेटिक आइसिलम में डालना है, असाइलम में डालना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट अराइजेज अंडर सेक्शन 330, देखिए मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। द सेक्शन अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो द सेक्शन सेज एक्चुअली यूजेज अ वेरी ब्रूटल लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो बेसिकली यू विल बी अनेबल टू ग्रास्प इट। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज इन माय ओन वर्ड सो यू आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, अब थर्ड क्लॉज इसका ये कहता है कि जब मैजिस्ट्रेट ने ये फाइंडिंग रिकॉर्ड कर ली है कि अनसाउंड माइंड का या मेंटल रिटार्डेशन है तो ये भी डिटरमाइन करेगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मेंटल रिटार्डेशन किस एक्सटेंट का है और साथ में ये भी देखेगा कि क्या मेडिकल ओपिनियन ऐसा है कि अगर उसको सफिशिएंट सिक्योरिटी अगर उसके फेवर में दी जाए कि वो अपने आप को इंजर नहीं करेगा, दूसरों को इंजर नहीं करेगा, तो वो किसी की कस्टडी में छोड़ा जा सकता है। या ये भी और साथ में ये भी डिटरमाइन करेगा कि क्या उसको इन पेशेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं, या आउट पेशेंट ट्रीटमेंट से भी काम चल सकता है। और आइदर केस में भी अगर मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगता है कि अक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता तो वो ये कर सकता है कि अक्यूज्ड पर्सन को रेसिडेंशियल फैकल्टी में डाल दे जहाँ पे अनसाउंड माइंड के पर्सन्स का ट्रीटमेंट होता है, जिससे उसको एडिक्वेट केयर, एजुकेशन या ट्रेनिंग दी जा सके।
अब ये थे सब्सटैंशियल प्रोविजन। अब 331 क्या कहता है एसेंस में? अब 331 कहता है कि इंक्वायरी या ट्रायल कब रिज्यूम कर सकता है। तो सिंपल है, एक सिंपल सी एक लाइन में आंसर सुन लीजिए। जहाँ पे भी ये पता चल गया कि अक्यूज पर्सन साउंड माइंड का है और या उसकी अनसाउंड माइंड की जो स्थिति थी वो बंद हो चुकी है, तो इंक्वायरी और ट्रायल रिज्यूम कर सकता है, ठीक है। और अगर ऐसे केस में अक्यूज्ड को बेल पे छोड़ा जा चुका है अंडर सेक्शन 330, और तो ऐसे केस में क्या कर सकता है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट, तो वो एक ऑफिसर जो अपॉइंट होता है जो नज़र रखता है उन लोगों पे जिनको आउट पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए छोड़ा गया है, उसकी एक रिपोर्ट अगर उसको मिल गई कि ऐसा व्यक्ति अब फिट स्टेट ऑफ माइंड में है, तो वो क्या कर सकता है, सीधे बोल उसको इन्फॉर्म कर देगा कि अब मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है, नाउ आई एम सेटिस्फाइड एंड नाउ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन बी ट्राइड, ठीक है। तब उसको ट्राई कर सकता है, या जहाँ जिस स्टेज पे भी उसने पोस्टपोनमेंट किया था वहाँ से वो आगे बढ़ेगा। फिर जब अक्यूज्ड उसके सामने आता है, 332 वही बताता है कि जब सामने आएगा तब क्या होगा, तो मैजिस्ट्रेट डिटरमाइन करेगा कि हाँ ये केपेबल है डिफेंस मेक करने का अपनी पोजीशन में, तब इंक्वायरी और ट्रायल से प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर उसे फिर पता चलता है वो इनकेपेबल है, तो वापस ये मैटर कहाँ चला जाएगा, 330 में। याद रखिए, अगर फिर से पाया कि इनकेपेबल है तो द सिचुएशन विल रिवर्स अगेन एंड गो बैक अंडर सेक्शन 330। फिर आपको पता है कि इन पेशेंट आउट पेशेंट ट्रीटमेंट जो भी एज द केस में भी मैजिस्ट्रेट को सही लगता है, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को सही लगता है, वो वैसा करेगा। और हम अब आगे के प्रोविज़न ये चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं कि अब वो साउंड माइंड का है। तो अब साउंड माइंड का जब देखा जाएगा कि जब अक्यूज्ड को लगता है कि जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड पर्सन साउंड माइंड का है एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, और मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि उसके सामने जो एविडेंस दिया गया है, ये बात बिलीव करने के लिए कि जब अक्यूज ने एक्ट कमिट की तो वो अगर वो उस वक्त अगर साउंड माइंड का होता तो वो ऑफेंस होता, पर अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो उसको 84 का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब वो डिटरमाइन करेगा ना मैजिस्ट्रेट को अपनी फाइंडिंग्स में ये बात रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है कि अक्यूज्ड पर्सन ने जो अक्यूज्ड पर्सन की मेंटल स्थिति है, क्या वो ऐसी है कि अक्यूज्ड पर्सन अब अपने आप को डिफेंड करने में काबिल है, और अगर वो डिफेंड करने में काबिल है तो मैजिस्ट्रेट फिर टोटली प्रोसीड कर जाएगा आगे की प्रोविजंस में। तो वो ट्रायल की जिस भी स्टेट से, इंक्वायरी की जिस भी स्टेट से छोड़ा था, मैजिस्ट्रेट वहाँ से प्रोसीड करने लगेगा। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस ऐसा है कि कोर्ट ऑफ सेशंस को ट्राई करना चाहिए, तो वो कमिट कर देगा केस को कोर्ट ऑफ सेशंस को, ठीक है। फिर सिमिलरली अब 334 में क्या आता है, नेक्स्ट प्रोविज़न क्या कहता है कि अब अगर सारा एविडेंस कंसिडर करने के बाद कोर्ट को लगता है कि एविडेंस ऐसा है कि जिसमें कन्विक्शन करना चाहिए तो कन्विक्ट कर दे, अक्विटल करना चाहिए तो अक्विट कर दे। लेकिन अगर कोर्ट उसमें एक फाइंडिंग पाता है, अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पे आता है कि जब वो एक्ट कमिट कर रहा था, मर्डर कमिट कर रहा था, कुछ भी कमिट कर रहा था जो ऑफेंस है, तो ऐसे टाइम पे जब उसने एक्ट की तब ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और नो वॉट एवर ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ, तो आपको पता है ऐसे केस में 84 का बेनिफिट मिलेगा। तो मैजिस्ट्रेट या जजेस के ऊपर जिम्मेदारी ये बनती है कि एक फाइंडिंग ये भी रिकॉर्ड करे स्पेसिफिकली कि अक्यूज्ड पर्सन ने वो एक्ट की थी या नहीं। ये फाइंडिंग इसलिए रिकॉर्ड करने की ज़रूरी है ये जानने के लिए इज़ ही डेंजरस टू हिमसेल्फ एंड दी अदर्स और नॉट, ठीक है। फिर सेक्शन 335 पे आते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ने अक्यूज्ड को अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ग्राउंड पे छोड़ा है, तो ऐसे केस में या अक्विट किया है, सॉरी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ग्राउंड पे अक्विट किया है। छोड़ना तो वाइडर एक्सप्रेशन है, उसमें डिस्चार्ज भी आ जाता है, उसमें अक्विटल भी आ जाता है। स्पेसिफिकली स्पीकिंग अक्विटल की बात कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 335। तब जो मैजिस्ट्रेट और कोर्ट है ये एक ऑर्डर रिकॉर्ड करेगा कि या तो उसको आप साइकियाट्रिक वार्ड में डाल दीजिए उसके ट्रीटमेंट के लिए,
या तो रिलेटिव फ्रेंड को आप उसको दे दीजिए जिससे उसको बार बार ट्रीटमेंट के लिए ले जा सके साइकियाट्रिस्ट के पास, लेकिन जनरली साइकियाट्रिक वार्ड में डाल देता है जज। साथ में सबसेक्शन 2 कहता है 335 का कि अगर अक्यूज को ल्यूनेटिक एसिलम में डालना है तो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट के प्रोविज़न से कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी किसी फ्रेंड और रिलेटिव को देना है आउट पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए, मान लीजिए केस ऐसा है जिसमें आउट पेशेंट ट्रीटमेंट हो सकता है अक्यूज कन्विक्टेड पर्सन का, तो सॉरी अक्विटेड पर्सन का अगर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ऐसे केस में जो कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट है वो एक सिक्योरिटी लेगा फ्रेंड और रिलेटिव से जो भी अक्यूज पर्सन के फेवर में आना चाहते हैं कि उसका वो रेगुलर ट्रीटमेंट कराएंगे एक्सेट्रा। उनको एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कोर्ट को कि कोर्ट जिस पर्सन को उनकी कस्टडी में दे रहा है, फ्रेंड या रिलेटिव की या फैमिली मेम्बर्स की, उनको अंडरटेकिंग ये देनी पड़ेगी कि जो अक्यूज पर्सन है उसकी प्रॉपरली देखभाल और जिम्मेदारी ली जाएगी और उसको इंस्पेक्शन के लिए हर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है। और ये भी एक उससे सेटिस्फैक्शन लिया जाता है कि दे विल मेक श्योर दैट सच पर्सन इज़ नॉट डेंजरस टू हिमसेल्फ और टू द सोसाइटी, ठीक है। सो these were the substantial provisions that were there. अब ना कुछ छोटे छोटे provisions हैं अंडर 336 to 339 ऑफ द CRPC, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अब 336 एक सिंपल सी बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन को एम्पावर कर सकती है IG ऑफ प्रिजन्स के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो इट डजंट टेल यू मच, वो कहता है कि ऑफिसर इन चार्ज को भी एम्पावर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, पर फंक्शंस क्या है। अब 337 कहता है कि मान लीजिए ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है उसको प्रिजन्स में डिटेन किया गया है, तो IG ऑफ प्रिजन्स को अगर लगता है कि ही इज़ केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू डिफेंस तो वो सर्टिफाई कर देगा कोर्ट को। या अगर मान लीजिए ऐसे पर्सन को ल्यूनेटिक असाइलम में डाला गया है तो जो विजिटर्स होंगे, एटलीस्ट दो विजिटर्स जो सर्टिफाई करेंगे कि अक्यूज पर्सन इज़ नाउ केपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस, तो वो मैजिस्ट्रेट को बता देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, और फिर जो सर्टिफिकेट है जो इंस्पेक्टर जनरल या विजिटर्स ने दिया है उसको एविडेंस की तरह रिसीव किया जाएगा। दैट इज़ व्हाट सेक्शन 337 इज सेइंग, ठीक है। अब 336 जो है वो सिंपली इस चीज़ की बात कर देता है कि जो IG जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था ना ये सर्टिफाई करने के लिए कि अक्यूज पर्सन इज इन फिट स्टेट ऑफ माइंड एंड नाउ ही इज़ केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू डिफेंस, ये 336 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिसर इंचार्ज को भी एम्पावर कर दे ये डिटरमाइन करने के लिए जो एक IG कर सकता है, ठीक है। लेकिन IG की स्टेट में तब आ जाएगा ये IG प्रिजन्स की बात हो रही है, IG पुलिस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। IG प्रिजन्स की बात हो रही है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। फिर अगर IG प्रिजन्स या विजिटर सर्टिफाई कर देते हैं कि जो पर्सन है अनसाउंड माइंड का उसको रिलीज़ किया जा सकता है एंड ही इज़ नॉट अ डेंजर टू हिमसेल्फ और सोसाइटी, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन बनते हैं कि या तो वो उसको रिलीज़ कर दे उस सर्टिफिकेशन पे एक्ट करके, या वो उसको उस अनसाउंड माइंड के पर्सन को पब्लिक ल्यूनेटिक असाइलम में डाल दे। ये दोनों ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। तो सेकंड ऑप्शन को फॉलो करने के लिए उसको एक कमीशन बनाना पड़ेगा जिसमें एक जुडिशियल ऑफिसर और 2 मेडिकल ऑफिसर होंगे जो एक फॉर्मल इंक्वायरी करेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि अक्यूज पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। ऑलराइट, सो ध्यान रखिएगा, मेयरली बिकॉज इंस्पेक्टर जनरल या विजिटर्स ने सर्टिफाई कर दिया स्टेट गवर्नमेंट के ऑप्शन गायब नहीं हो जाते, वो रहते हैं। तो 338 में स्टेट गवर्नमेंट की पावर की बात की गई है। अब 329 एक और चीज़ की बात करता है, फाइनल चीज़ की बात करता है कि जिस पर्सन को क्या कहते हैं जब रिलीज़ भी किया जा सकता है तो उसको केयर ऑफ रिलेटिव या फ्रेंड की कस्टडी में भी डाला जा सकता है अगर जो फ्रेंड या रिलेटिव है ये एक सिक्योरिटी दे टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि ऐसे पर्सन की प्रॉपरली देखभाल होगी और वो किसी को इंजरी नहीं पहुंचाएगा, ना खुद को ना दूसरे पर्सन को। जिस भी ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इंस्पेक्शन ऑफ सच पर्सन के लिए उसको टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन के लिए प्रेजेंट किया जाएगा, और साथ में जब भी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट रिक्वायर करेगा ऐसे पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए तो उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑलराइट, तो 339 में बस इतनी सी चीज़ है। फिर लास्ट में सब 339 के सबसेक्शन 2 में एक और स्थिति ये है कि मान लीजिए रिलेटिव या की कस्टडी में जब दिया गया है, रिलेटिव या फैमिली की कस्टडी में दिया गया है,
तो जो ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंट किया है, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट में आके बता देता है कि नाउ इज़ इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ने इंक्वायरी या ट्रायल पोस्टपोन किया है तो उसी स्टेट से वो चालू कर देगा। अगर वो अक्यूज्ड को बुलाता है, बुला के पाता है कि नाउ इज़ इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, और फिर उसके बाद में वो जो भी सर्टिफिकेट या मेडिकल ओपिनियन है सारा कंसिडर करता है, और फिर उसको लगता है फिट स्टेट ऑफ माइंड है तो फिर रिजम्पशन कर देगा। रिजम्पशन के लिए फिर यू गो बैक टू द सेम प्रोसीजर, ठीक है, जो CRPC ने अभी पहले बताया, जो कि आपका 331 से 335 तक है। ऑलराइट, तो इन टोटलिटी कौन से कितने प्रोविज़न है जो CRPC बताती है अनसाउंड माइंड के पर्सन को कैसे ट्रीट करेंगे आप, या मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को क्या एक्ट करना चाहिए, वो आपके हैं 328 से 339 तक। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नाउ योर नॉलेज ऑफ अनसाउंड माइंड के पर्सन से कैसे डील करना है सब्सटेंशियल एस्पेक्ट में और प्रोसीजरल एस्पेक्ट में, दोनों में कंप्लीट हो चुकी है। ऑलराइट, प्रिंसिपल्स आपको पता चल गए, केस लॉज आपको पता चल गए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको पता चल गए, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स आपको पता चल गए। नाउ योर नॉलेज ऑफ हाउ टू ट्रीट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज़ टोटली कंप्लीट। ऑलराइट, क्योंकि अनसाउंड माइंड के पर्सन्स का प्रोसीजर वहीं नहीं ख़त्म हो जाता कि जहाँ पे आपने 84 के पैरामीटर्स और प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए। अब ये भी तो जानना है ना इसके बाद क्या होता है, तो नेक्स्ट हर चीज़ में एक नेक्स्ट स्टेज होती है। तो आई वांटेड ऑल ऑफ यू टू हैव अ होलिस्टिक एंड कंप्लीट नॉलेज कि 84 के टाइप्स किधर होते हैं। तो ये एज फार एज CRPC एंड IPC आर कंसर्न वहाँ पे कंप्लीट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैंने बता दिए। अब ये होता है कि इन प्रोविजंस का एक ओवरलैप एक और जगह होता है, मेंटल हेल्थ एक्ट और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। तो वहाँ पे भी एक ओवरलैपिंग होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। प्रैक्टिस के पर्पस से रेलेवेंट हो जाएगा अगर आप ऐसे अक्यूज पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अनसाउंड माइंड का है। तो फॉर दैट पर्पस यू मे डिस्कस विद मी वो आर इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और ज़्यादा जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस एस्पेक्ट में, मेंटल हेल्थ एक्ट और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में और क्या होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जनरल प्रैक्टिस ऑफ लॉ के भी पर्पस से इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत स्पेशल केसेस में होता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन आस्क मी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट एट ऑल रेलेवेंट नहीं है वो ज़्यादा, दैट इज़ वाई आई एम नॉट इंक्लूडिंग इट हेयर। तो लेकिन CRPC का जो प्रोविज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। CRPC का प्रोविज़न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि भाई एक तो फाइंडिंग उस स्टेज पे आ जाएगी जहाँ पे ट्रायल चल रहा है, जहाँ पे आप 84 डिटरमाइन करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट और प्रिंसिपल, फैक्ट, सर्कमस्टेंसेस, एविडेंस, बाकी सारी चीज़ें, जितने भी प्रिंसिपल अभी मैंने 84 पे बताया वो डिटरमाइन करते हैं, जितने भी इतने लेक्चर से बताता आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद की जो स्टेट है, द नेक्स्ट स्टेट, ये तो ठीक है ट्रायल के दौरान हो गया, लेकिन उसके आगे क्या करेगा? क्या ऐसे आदमी को आज़ाद छोड़ देता है कोर्ट कि ठीक है तुमने एक कर लिया, जाओ दूसरे तीसरे भी करो? नहीं, उसको एक प्रोसीजर से चलना होता है। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए एविडेंस के ट्रायल के दौरान अगर आदमी इंसेन है तो वो इंक्वायरी के दौरान भी इंसेन हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन के भी दौरान इंसेन हो सकता है, तब क्या करेंगे? उसके लिए भी प्रोसीजर है CRPC में 328 में, ट्रायल के लिए स्पेसिफिकली 329 में है, फिर आगे प्रोसीजर में क्या कंप्लाई करना है वो 330 में है, जैसा अभी मैं प्रीवियस बताता आ रहा हूँ। फिर रिजम्पशन कैसे होगा 331 में, फिर रिपोर्ट्स कैसे ली जाएंगी, आदमी कैसे क्या कहते हैं, फिर अक्यूज पर्सन को बुलाया जाएगा, देखा जाएगा साउंड माइंड की स्टेट में है या नहीं, कहाँ पे कन्फाइन किया जाएगा, कहाँ नहीं कन्फाइन किया जाएगा। दैट इज़ ऑल ऑफ दैट आई टोल्ड यू फ्रॉम 328 टू 339। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की साइकोलॉजिस्ट क्या क्वेश्चन पूछता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कैसे एग्जामिन करता है, सारी चीज़ें क्या देखता है, फिर मेंटल हिस्ट्री उस इलनेस की, ये सारी चीज़, बिहेवियरल पैटर्न, सारी चीज़ें अभी जो मैंने सेशन की शुरुआत में आपको बताया ना कि साइकोलॉजिस्ट कैसे जनरल क्वेश्चन से एक्सेप्शनल क्वेश्चंस पे आता है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन किए जाते हैं। ऑफ कोर्स मैंने वो सारी चीज़ें नहीं बताई, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन केस स्टडी आपको थोड़ी ना करवानी है यहाँ पे आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ बताने हैं, सो दैट यू आर केपेबल ऑफ हैविंग एटलीस्ट वर्किंग नॉलेज ऑफ लॉ। सो एज फार एज अनसाउंड माइंड इज़ कंसर्न, आपकी नॉलेज इस पॉइंट पे अब सफिशिएंटली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी और एग्ज़ाम के पर्पस के लिए तो कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से। ऑलराइट, सो वी आर डन विद द साउंडनेस ऑफ माइंड। नाउ वी विल आई थिंक विद इन 1 or 2 सेशंस कंप्लीट रेस्ट ऑफ द प्रोविजन, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा ख़त्म हो जाएगा विद इन दिस वीक इटसेल्फ। ऑलराइट, और मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट मंडे तक। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वील मीट यू
next time.